Hello students, a very warm morning to each and every students of class 3rd. Dears, how are you all? I think all are fit and fine. Students, so now it's time to start our today's worksheet. So students, take out your book, English course book, and open the chapter 10, Learning from Nature. And students, we are having the exercises of the chapter. Today we will just try to complete the exercises of the chapter. Okay, and after that I think you all were having remain the question answer, so which you will get on tomorrow, and today we will do the textbook exercises. So all of you open your book now and take out the page number 50. Take out the page number 50. All of you open the page number 50. Do it fast. Okay, so if you have opened, so you can see now we have done the exercises about what? About the synonyms exercise. Synonyms exercises are completed. After that we have the building blocks. Okay, building blocks exercise, and then in building blocks the option is that 8 verbs. Means today we are going to read about the 8 verbs. So students, let's start. Read this passage carefully. There's given a passage, so let's start to read it. People were observing the plants closely. Now you can see it's highlighted in red. People were observing the plants closely. They were greatly, means whatever highlighted you are having na, these all are the 8 verbs. Okay, इसलिए इसको highlight किया गया है. Greatly surprised to see the different types of plants. Next sentence. The gardener said that the plants can be grown easily. Okay, so how many words are there in red? First closely, second greatly and easily. And after that, now answer these questions in one word. Now we will make some questions for these words, for these 8 verbs. Start to see the question. First question, how did people observe the plant? लोगों ने प्लांट्स को कैसे ऑब्जर्व किया? मेक अ क्वेश्चन. क्या होगा क्वेश्चन? लोगों ने प्लांट को कैसे ऑब्जर्व किया? तो आपका आंसर क्या होगा? क्लोजली. व्हाट विल बी द आंसर? क्लोजली. मीन्स वी मेक क्वेश्चन हाउ एंड एक्शन हैपेंस. मीन्स जो वर्क हो रहा है वो कैसे हो रहा है. ठीक है, इस एडवर्ब में ये हम आस्क करते हैं, बताया जाता है. सेकेंड क्वेश्चन फॉर ग्रेटली. हाउ वर दे सरप्राइज. वो लोग कैसे सरप्राइज थे? वो लोग कैसे सरप्राइज थे? तो देखिए आपका वर्ड क्या है फॉर एन एडवर्ब? ग्रेटली. क्या वर्ड है आपका? ग्रेटली. ठीक है, ग्रेटली हो जाएगा ना. यस. सो एंड द फॉर सेकेंड फॉर ईजली दैट्स क्वेश्चन, हाउ कुड द प्लांट बी ग्रोन. हाउ कुड द प्लांट बी ग्रोन. मीन्स प्लांट जो है वो प्लांट जो है वो कैसे ग्रो होते हैं या हो सकते थे. येस. सो आंसर यू हैव व्हाट? आंसर यू हैव easily. Okay, means what about the adverb definition? An adverb tell us how an action happened. जो adverb है tell us हमें बताता है how कि जो एक्शन हो रहा है, जो वर्क हो रहा है, ठीक है, सेंटेंस में वो कैसे हो रहा है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं. ठीक है, जैसे कैसे हो रहा है, ये लोगों ने प्लांट को ऑब्जर्व कैसे किया? क्लोजली किया. देखिए हाउ की क्वेश्चन बन रही है. और लोग सरप्राइज कैसे थे? ग्रेटली थे. और ये जो प्लांट्स ग्रोन हो रही है कैसे हो रही है? ईजली हो रही है. ठीक है, तो ये हाउ क्वेश्चन मेक करता है. आफ्टर दैट वी हैव हाउ डिड द पीपल ऑब्जर्व द प्लांट. क्वेश्चन आपका है लोगों ने प्लांट को ऑब्जर्व कैसे किया? आंसर क्या है आपका? क्लोजली. क्लोजली किया. हाउ कुड बी द प्लांट बी ग्रोन. प्लांट जो है कैसे ग्रोन किया? वो भी ईजली किया. ईजली आपका क्या हो जाएगा? ईजली क्या होगा? ईजली यहाँ पे आपका एडवर्ब है. मीन्स दिस वर्ड क्लोजली एंड ईजली बोथ आर व्हाट? बोथ आर दी एडवर्ब हियर. सो लेट्स स्टार्ट टू सी. लेट्स ट्राई 4. कैन यू अंडरलाइन द एडवर्ब्स इन द सेंटेंसेस हियर? वन हैज बीन डन फॉर यू. कैन यू अंडरलाइन द एडवर्ब्स इन द सेंटेंसेस हियर? Students, we have some sentences and you have to find out the 8 verbs. Okay, and then underline it. So start to see. First is this, I answered the questions easily.
Okay, first is completed. I answered the questions. So students, first let's come to make the questions for this. चलिए हम लोग क्वेश्चंस बनाने चलते हैं. I answered the question easily. Make question. How did you answer? आपने आंसर कैसे दिया? How did you answer the question? तो आपने क्वेश्चन का आंसर कैसे दिया? तो हमारा आंसर है easily. What will be the aid verb? एक्शन वर्क कैसे हुआ है? आपका एक्शन कैसे हुआ है? आपका वर्क कैसे हुआ? ईजली हुआ है. तो ये जो ईजली आपका है वो क्या होगा? एड वर्ब होगा. ठीक है, ईजली विल बी एड वर्ब. सो अंडरलाइन इट. सो लाइक दिस वी हैव सम मोर. सेकंड, पीपल ऑब्जर्व प्लांट एंड एनिमल्स. हाउ? किस तरह से ऑब्जर्व किया? मीन्स लोगों ने प्लांट्स एंड एनिमल्स को ऑब्जर्व किया. कैसे किया? यस, केयरफुली. हाउ डिड इट हैपन? केयरफुली. मीन्स केयरफुली इज एडवर्ब हेयर. तो इसको आप अंडरलाइन कीजिए. नेक्स्ट है, ही स्पीक्स उर्दू फ्लुएंटली. ही स्पीक्स उर्दू फ्लुएंटली. तो क्या होगा? ही स्पीक्स मीन्स हाउ डज ही स्पीक उर्दू. वो स्पीक कैसे बोलता है? कैसे मीन्स क्वेश्चन बनाइए. हाउ. हाउ एन एक्शन हैपन मीन्स जो एक्शन हो रहा है वो कैसे हो रहा है आपको ये बताना है. ठीक है, तो उर्दू कैसे बोलता है? फ्लुएंटली मीन्स बहुत तेज़ी से एंड कॉन्टिन्यूसली बोलता है. ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? दैट विल बी द एडवर्ब. फ्लुएंटली विल बी एडवर्ब. केयरफुली एंड फ्लुएंटली बोथ विल बी एडवर्ब. सो स्टूडेंट्स, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पेज. ऑन पेज नंबर 51 यू कैन सी. यहाँ देखिए. नाउ मैं हैव विद द पेज नंबर 51. The spears sailed through the air. What do you have? Quietly means quietly is the adverb here. Students, be remember in adverb we just get ly or it's already added ly in adjective. ये जो quite है, देखिए पहले अगर हम इसको quietly है, अगर हम इसको quite write करते हैं, see there. ठीक है, suppose that it's a quite word. यहाँ पे अगर हम quite write करते हैं, so what type of word is this? Is it noun, pronoun or adjective? Yes, it's your adjective. इट विल मीन एडजेक्टिव. ठीक है, बट इसमें देखिए क्वाइट में क्या किया गया? एल वाई ऐड कर दिया गया है. तो ये आपका हो गया है क्वाइटली. ठीक है, क्वाइटली हो गया है ना. तो हम एडवर्ब में क्या करते हैं? मोस्टली वर्ड एडजेक्टिव वर्ड में या एडजेक्टिव्स में क्या होता है? एल वाई एडेड होता है. तो आप इसको ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं. जहाँ आपको एल वाई एडेड दिखे, सो जस्ट थिंक दैट दैट्स योर एडवर्ब. और एल वाई एडेड नहीं है और अगर किसी नाउन के साथ एडेड है, दैट मीन्स दैट्स योर एडजेक्टिव. वो आपका एडजेक्टिव है. ठीक है, तो देखिए आप देख सकते हैं इन दी ऑल वर्ड्स एल वाई इज एडेड. तो आपको हो जाएगा क्वाइटली विल बी योर एडवर्ब. सेकेंड, द गर्ल राइट्स नीटली. हाउ डज द गर्ल राइट? गर्ल जो कैसे राइट करती है? नीटली राइट करती है. बिल्कुल नीट एंड क्लीन राइट करती है, ब्यूटीफुली राइट करती है. तो नीटली जो आपका क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा. ठीक, तो आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए. नेक्स्ट, द ह्यूमन्स यूज देयर नॉलेज. द ह्यूमन्स यूज देयर नॉलेज. ह्यूमन जो है उन्होंने अपने नॉलेज को कैसे यूज़ किया? कैसे यूज़ किया? लास्ट वर्ड यू हैव हैप्पीली. हैप्पीली मीन्स हाउ? हैप्पीली. हैप्पीली इज एन एडवर्ब है. ओके, नेक्स्ट, मिस्टर सेठ डांस मैरिली टू द फ्रंट डोर. मिस्टर सेठ डांस मैरिली. मिस्टर सेठ जो है उन्होंने डांस किया बिल्कुल डोर के फ्रंट पे मैरिली मीन्स बहुत ही ब्यूटीफुली के साथ. तो मैरिली आपकी यहाँ पे क्या हो जाएगी? मैरिली जो है वो आपकी एडवर्ब है. ठीक है, आप इसको अंडरलाइन करेंगे. नेक्स्ट यू हैव सुधा स्टडीज व्हाट? फेवरसली फॉर हर टेस्ट. सुधा स्टडीज. सुधा ने अपने टेस्ट के लिए स्टडी किया. कैसे किया? फेवरसली मीन्स फेवरसली विल बी द एडवर्ब here. So underline it also. After that, many adverbs are formed by adding ly to adjective describing word. मीन्स क्या? देखिए मैंने आप लोग अभी बताया ना कि क्या होता है मेनी एडवर्ब्स. मीन्स बहुत सारे एडवर्ब ऐसे होते हैं जिनको ly ऐड करके उनके फॉर्म को चेंज कर दिया जाता है. वो एडजेक्टिव से एडवर्ब में चेंज हो जाते हैं. ठीक है, एडजेक्टिव क्या है? आपके डिस्क्राइबिंग वर्ड है. जैसे आपका क्लीन. ठीक है, जैसे आपका क्लीन है. ठीक, क्लीन आपका एडजेक्टिव है ना, क्योंकि इसके साथ हम नाउन ऐड कर सकते हैं. क्लीन क्लॉथ, क्लीन रूम. तो आपका क्लॉथ रूम जो है वो नाउन होगा.
So clean is the adjective here, and when we added ly, now turn to the adverb. ठीक है, ये क्या हो गया, adverb में turn हो गया, adverb में change हो गया है. Next आपका है bright. So when we are adding ly, yes, it's turned into an adverb. Happy, same thing is there. The adverb form will be of happy, happily, and after sigh is there, the adverb form will be of sigh will be silily. Okay. Next, let's make a few sentences together. Let's make a few sentences together. Since we have some examples. Meera is happy when she sings. Meera is happy when she sings. Meera is happy when she sings. Okay. Meera sings happily. Meera sings happily. So happily is your adverb here. Second sentence. The moon is bright when it shines. ठीक है, मून ब्राइट होता है जब ये साइन करता है. द मून सेकेंड सेंटेंस हम बना सकते हैं. ठीक, ब्राइट से यहाँ हैप्पी है ना, ये हैप्पी आपका फर्स्ट में है एडजेक्टिव, और यहाँ पे भी आपका सेकेंड में ब्राइट एडजेक्टिव है, और इस एडजेक्टिव से हमने एडवर्ब को एक एडवर्ब बनाया, एडवर्ब को चेंज किया. दैट्स कॉल्ड द मून शाइन्स ब्राइटली. द मून शाइन्स ब्राइटली. सेकेंड सेंटेंस. रोहित इज शाई. रोहित इज शाई. शाई इज एडजेक्टिव है फॉर रोहित. And when he speaks, and we will make an adverb by this shy word. Rohit speaks silently. Rohit speaks silently. ठीक है, silently. Come on, next tense we have examples or exercise. Turn the adjectives into adverb. We have to turn to the all adjectives into the adverb. The first one is done for you. Start now. Yes, first one. He was a brave soldier. Okay. And second sentence in adverb form. ये आपका brave क्या, एडजेक्टिव है ना. ये सारे जो फॉर्म है, ये देखिए, ये सारे एडजेक्टिव फॉर्म है, और जब इसको एडवर्ब में हम लोगों ने चेंज किया है तो देखिए इसकी फॉर्म कैसे चेंज हो गई. ly ऐड करके किया गया है. तो he was brave soldier. And next आपका सेंटेंस he fought. brave word you have to just turn into an adverb. तो आपको क्या हो जाएगा, bravely. ऐड कर देंगे ly. ठीक है, bravely. ऐसा आपका सेकेंड है. There was heavy rain last night. So the adverb form will be it rained. What will be heavy of adverb form heavily. ठीक है, heavily. ये y है ना, तो y को हम रिप्लेस y को रिमूव करके ily ऐड कर देंगे. ठीक है. ऐसा आपका नेक्स्ट है. तरुण इज अ स्विफ्ट रनर. सो द एडवर्ब फॉर्म विल बी ही रन्स स्विफ्ट एट देयर स्विफ्टली. ठीक है, आपका स्विफ्टली फॉर्म हो जाएगा एडवर्ब में. सेकेंड. भीम इज अ फुलिश बॉय. ठीक है, तो ये आपका एडवर्ब फॉर्म होगा ही बिहेव्स फुलिशली. ly ऐड करेंगे, ये आपका एडवर्ब में चेंज होगा फुलिशली. सेकेंड. सरिता इज अ क्वाइट वर्कर. सरिता इज अ क्वाइट वर्कर. सो सी वर्ब. नाउ टर्न टू दिस वर्ड और दिस एडजेक्टिव वर्ड इन एडवर्ब. तो आपका हो जाएगा क्वाइटली. ठीक है, क्वाइट का हो जाएगा क्वाइटली. ओनली वी नीड टू एड समवेयर ly. ठीक है. सेकेंड. रेहान स्पीक्स इन अ सॉफ्ट वॉइस. यस, स्पीक्स इज और एडजेक्टिव. चलिए हम इसको एडवर्ब में चेंज करते हैं. ही स्पीक्स क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सॉफ्ट. ये सॉफ्ट आपका है ना, स्पीक तो आपका वो वर्ब हो जाएगा. सॉफ्ट आपका एडजेक्टिव है. ठीक, तो ये हो जाएगा आपका सॉफ्टली. क्या होगा, सॉफ्ट में ly ऐड करेंगे, हो जाएगा सॉफ्टली. नेक्स्ट है. द विंड वॉज फायर्स. द विंड वॉज फायर्स. सो द एडवर्ब फॉर्म विल बी द विंड ब्लू इज गिवन देयर फायरसली. ठीक है, ओनली ly ऐड करेंगे, ये आपका एडवर्ब फॉर्म में चेंज हो जाएगा. स्टूडेंट्स, वन मोर पेज वी हैव बिकॉज वी आर गोना टू हैव द कंप्लीट एक्सरसाइज. ठीक है, यहाँ देखिए. सी देयर. The man was hungry. The man was hungry. What's your adjective word? Hungry. He ate. क्या हो जाएगा यहाँ पे, hungrily. In adverb form, he ate hungrily. ठीक है. Second. The angry gained stormed in. Angry is your adjective. तो हम adjective को turn करेंगे adverb में, तो क्या हो जाएगा, descend storm. क्या हो जाएगा यहाँ पे, angrily. What will be angrily? Next. The teacher was kind. Kind is your adjective. सो मेक इट एन एडवर्ब. द टीचर एक्टेड. क्या हो जाएगा, ly ऐड करिए, आपका हो जाएगा काइंडली. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? आई होप सो you all have understood this exercise very well today. Okay, so if you have problem,
try to complete this exercise firstly, complete it, and after that try to understand, read it more and more time for understanding well. Okay, and after that I think students we have completed exercise, because these are about the think and share, and it's not for exam. Okay, so if you want to read it, so you may read it about the paragraph writing. Exercises are not given now, so till here the exercises are there, which are very useful and important for exam, and from the next time you will start to see the next chapter. So till then students, do your work, revise it well. Now thank you, have a good day.